सभी को जय जिनेन्द्र। विकास जी, शांतनु, सुमित जी, सुमति जी, गौरव जी, कीर्ति जी, रेणुका जी, तितिक्षा जी, महेंद्र जी, डॉक्टर मेहता जी, अमित जी, नवीन जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हितेश जी, नवीन जी, एक बार आप जरा पंकज जी से बात कर लेंगे क्या ज्वाइन करने के लिए? एक मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ बस। जय जिनेन्द्र पंकज जी। जय जिनेन्द्र सर। बड़ौदा टीम तैयार है आपके साथ इंटरेक्शन के लिए, तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्टार्ट करिए फटाफट, क्योंकि टाइम का अपने को मेंटेन करना है, बेसिक डिसिप्लिन। जी, तो मैं महामंत्र नवकार से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवजायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये शब्दसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो श्रव्य पावपणासनो मंगलाणम च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले बड़ौदा ब्रांच के अध्यक्ष अजय जी सुराणा से स्वागत के लिए सभी पार्टिसिपेंट। जय जिनेन्द्र। पूज्य प्रवर आचार्य श्री के चरणों में वंदन। टीपीएफ नेशनल प्रेसिडेंट श्री पंकज जी ओस्तवाल, नवीन जी चौरड़िया, राजेंद्र जी पारक एंड टीपीएफ वडोदरा के सभी मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं आज की इस मीटिंग में। और मीटिंग में पंकज जी को मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बड़ौदा ब्रांच के बारे में जानकारी दे देता हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो थोड़ा सा इजी रहेगा। राजेंद्र जी, ये स्क्रीन शेयरिंग आप ऑन कर दीजिए ना मेरे लिए, या मेरे को होस्ट बना दीजिए। हाँ अजय जी, अब आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, जस्ट अ मिनट। Pankaj ji, once again, we welcome you for this meeting, and
this meeting is an opportunity for all of us to interact with you, and it is our privilege to interact with you. Screen आगे. हाँ आ Yes, रहा है yes. अजय जी. Pankaj ji, currently in Vadodara branch we have total 37 members, and out of 37 members, 23 are male and 14 are female members. And by profession, the bifurcation is like this: there are total chartered accountant or the CS 11, and 11 are engineers, 5 are doctor, 5 are MBA, 3 are architect, and 2 are advocate. And out of these 37 members, 4 are from Dahod city, which is approximately 150 kilometers away from Vadodara. Dr. Mehta, Mahendra Mehta is in our meeting currently, and other family members of Dr. Saab is from Dahod. Out of 37, 4 members currently not residing in Vadodara, and they have left from, but however they have left their, means they have retained their membership at Vadodara. Shall I continue? हाँ बोलिए ना बोलिए. Yeah. Okay. And we are continuously in touch with all prospect members. So another 7-8 members are there whom we can convert into TPF member. So we are continuously in touch. There are 3 members who have come to Baroda, though they are already TPF member, but they still not taken Vadodara membership. They have retained their original membership. So those also can convert into a TPF Vadodara members. This is our office members of Baroda branch. Myself, Ajay Surana, I am a president. Rajendra Ji Parak, he is an immediate past president, and he is our mentor. Actually, he has played a vital role in formation of Vadodara branch. Dr. Mehta from Dahod, he is a vice president. Mahavir Ji Hiran, he is vice president. Shreyans Mehta, he is secretary of this branch. Saurav Kothari and Ajay Ji Shah, they are joint secretary of this branch. And Amit Ji Hiran, he is a treasurer. In our team, we have put all conveners to facilitate all the programs. So Gauravji Lodha is membership convener, and he is driving the membership activity. Titiksha is a career counseling convener. Deepam Setia is a Gen Next convener. Apeksha is Femina convener. Kajal Samandariya is legal convener, and Aryanji Singhi is a Futura convener. So in this term, till now we have done cyclothon. Then your visit was at Baroda on 9th Jan. Career counseling program we conducted on 29th Jan. We conducted one budget seminar on 2nd Feb. Baroda team also participated in Global Connect program from 10 to 12 March at Ahmedabad. And recently Gurudev has visited Baroda. So we all have worked towards that, and on 7th April there was a program at Baroda, and TPF participated in that. Currently we are focusing on mission 1313, and we are pursuing our Samaj families to contribute into that. And after that, expedition program planning is also going on at Baroda, and membership drive is a continuous program which we are pursuing. So it is a short introduction to Vadodara branch. With this, I complete my speech. Om Haram. Thank Over to you, Rajan. Ajay ji, for your welcome address. Yeah, thank you, Ajay ji, for your welcome address and brief introduction. Now I request our National President Pankaj ji to address and motivate Baroda branch members. आचार्य श्री के श्रीचरणों में वंदना. टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के श्रीचरणों में वंदना. हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय नवीन जी चौड़िया, हमारे जोन के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय पारिक जी, ब्रांच प्रेसिडेंट अजय जी सुराना, बड़ौदा ब्रांच के ऑफिस बियरर्स, प्रोफेशनल मेंबर्स, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र. मुझे आज अजय जी की ये रिपोर्ट देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो प्रेसिडेंट लाइव के जो प्रोग्राम चल रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, तो उसमें सबसे जो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन का स्टाइल रहा. मैं इनफैक्ट नवीन जी को कहूंगा कि अजय जी से ये ड्राफ्ट रिपोर्ट उठा लें और
अपने सभी ब्रांचेस को और यूनिट्स को भेज दें कि अगली बार से जब भी कोई प्रेसिडेंट लाइव का प्रोग्राम हो तो ये फटाफट एक समरी आ जाती है। सो अजय जी, हैट्स ऑफ टू यू, और यू हैव गिवन अस ए न्यू स्ट्रक्चर फॉर आवर प्रेसिडेंट लाइव प्रोग्राम। तो हम चाहेंगे कि आप इसको आप हमारे को फटाफट भेजें ताकि हम इस मॉडल को दूसरी ब्रांचेस को अडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे। अब ये मालूम है बड़ोदरा ब्रांच काफी अच्छा काम कर रही है। मैं खुद पर्सनली आया था और अभी आई एम वेरी प्लीज्ड कि आज ऑलमोस्ट 20 प्रोफेशनल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जस्ट 2-3 मिनट में इसको क्लोज करके और फिर मैं 20 प्रोफेशनल से एक तो सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम लोग एक दूसरे को पहचान पाए। क्योंकि वडोदरा में आया था तो मैं अभी अजय जी को पहचानता हूँ, पारिक जी को पहचानता हूँ, अभी उसके बाद में मुझे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि किसको पहचान पाएंगे, कौन लोग मुझे पहचान पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग फेस दिखाएं तो आइडिया लगेगा। और जब तक 2-3 बार 4 बार देखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं तो याद नहीं रहता है। मेरे लिए तो नहीं रहता है, प्रैक्टिकली मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है याद करना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। और लेकिन कहीं आपने वो फेमिना मिस हो गया क्या? फेमिना कैसे मिस हो गया अजय जी? उसको देखिए, अब की बार कर लीजिए, आने वाले किसी टाइम पे एक वो प्रोग्राम करा जाए। जरूर। और हाँ, और अभी जो लेटेस्ट जो हमारी नेशनल टीम की तरफ से जो प्रोजेक्ट या कहें कि जो मिशन 1313 चल रहा है, उसका मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि मिशन 1313 इज बेसिकली इट इज ए मिशन टू कनेक्ट तेरापंथी families across the country and showcasing TPF कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम क्या एक्टिविटीज करता है। उसमें मेनली जो एक एजुकेशन की जो एक्टिविटी है जिसमें कि हम आचार्य महाप्रज्ञ शिक्षा सहयोग योजना के तहत बच्चों को जो हम एजुकेट करते हैं पूरे देश भर में, उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने शोकेस कर रखा है। उस प्रोजेक्ट के तहत हम बच्चों को जो स्कॉलरशिप सपोर्ट जो देते हैं उसको बेसिकली टारगेट किया हुआ है मिशन मंत्री में। तो मेरी रिक्वेस्ट है बड़ौदा ब्रांच के सभी प्रोफेशनल से कि वो तेरापंथी परिवारों से कांटेक्ट करे, टीपीएफ को शोकेस करे और ये बताए कि हम एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, एक एक बच्चे को पढ़ाते हैं। एक बच्चे को पढ़ाने का लगभग खर्चा 21,000 रुपए है और वह जो 21,000 रुपए हम उस बच्चे को देते हैं वह उसके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग के जैसे है, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि जब तक वो बच्चा वो 21,000 रुपए लेता है और जब वो पढ़ता है और निरंतर एक एक क्लास आगे बढ़ता है तो आगे कहीं ना कहीं चल के वो समाज और धर्म संघ के काम आएगा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मिशन 1313 में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 21,000 रुपए है। मेरा मानना है कि अपन 21,000 रुपए साल में कहीं भी कभी भी खर्च कर देते हैं, उसमें मेरी कोई वो नहीं है कि वो भी खर्च करने चाहिए, लेकिन हो सके एक बच्चे को जरूर पढ़ाइए और उससे वो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। और अंत में बस आज के लिए मैं चाहूंगा कि बेसिकली ये बहुत शॉर्ट सेशन होता है, सिर्फ 30-40 मिनट्स का सेशन होता है। तो लेट्स हैव एन इंटरेक्शन। आई एम पंकज ओस्तवाल, आई हैव ऑलरेडी कम डाउन टू बड़ौदा, आई कैन डेफिनेटली कम डाउन मोर। अजय जी का रहता ही है और पारिक जी तो मुझे हमेशा, पारिक जी से बहुत बात होता है, वो तो कहते रहते हैं आओ आओ आओ। प्रोफेशनली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम इनटू बिजनेस, आई हैव फर्टिलाइजर केमिकल्स business in Rajasthan, Madhya Pradesh. We are putting up another plant in Gujarat or Maharashtra, I don't know right now, but definitely we are coming up with a big fertilizer plant. We are top 3 manufacturers of fertilizers in the country. This is my small introduction. So Ajay ji, we can start with introduction taki this is better, this is the whole purpose. So I will give my introduction and then one by one I will take the name. We will continue our introduction. Hello to everyone. I am Ajay Surana. By profession I am a mechanical engineer. Currently I am working with Larsen and Toubro as a project manager. Rajendra ji, you please introduce yourself. I am Rajendra Parak, CA, CS and ICWA by academic qualification, and I am working with ONGC Petro Addition Limited. Originally I am from Churu. Thank you. Naveen ji, please introduce yourself. Naveen Chodia, MBA. Currently, I'm engaged with my business, diamond jewelry business, and TPF से starting से जुड़ा हुआ हूँ.
और अभी पंकज जी की टीम में मुझे वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व मिला है। थैंक यू। अमित जी प्लीज आप इंट्रोड्यूस करिए। Amit Hiran, by profession mechanical engineer, working in Air Products Vadodara, basically from Gangapur, Rajasthan. विकास जी बेंगानी आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। Yeah. Good evening. I am Vikas Bengani. I am a chartered accountant and company secretary. I am working with Larsen and Toubro as joint general manager, and I am Vidasar Churu. Thank you. आप दोनों एक ही कंपनी में हो गए मतलब? Yeah, that's it. तितिक्षा आप इंट्रोड्यूस करिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तितिक्षा जैन, चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम क्वालिफिकेशन, वर्किंग विद ONGC PET एडिशंस। माय नेटिव प्लेस इज विदासर। थैंक यू। अनीशा जी आप इंट्रोड्यूस करिए। I am Anisha Jain. I am basically from Bhilwara, Rajasthan, and अरे I वाह। am chartered accountant. Yeah, मैं आपसे मिली भी हूँ। मिले में आप मेरे से? मेरे को अब याद नहीं आ रहा। देखो आप। सम्मान समारोह था तब आप ही ने ही मुझे प्राइज दिया। अरे चलो बढ़िया है तो चलिए अच्छा ठीक है। I क्या am कर रहे हो chartered भैया? accountant from qualification, chartered accountant, and recently joined L&T Technology, Vadodara. अरे वाह, वेरी गुड। हितेश जी आप हो गए और अमित जी भी अब भीलवाड़ा से हो गए, 2 जने हो गए यहाँ से। बढ़िया। हितेश जी आप हितेश जी आप इंट्रोड्यूस करिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम हितेश मेहनोत है। आई एम एन MBA। मैं उदासर बीकानेर से हूँ, बड़ौदा रहता हूँ। मेरा इंडस्ट्रियल सप्लाई का बिजनेस है। धन्यवाद। हितेश अपने TPF के एक्टिव मेंबर के साथ साथ यहाँ तेयुप के मंत्री भी है, और खास करके अभी जो आचार्य श्री का प्रवास हुआ तो आचार्य श्री ने स्वयं अपने श्रीमुख से तेयुप को, हितेश जी की पूरी टीम को बहुत बहुत मतलब साधुवाद दिया की जो सेवा रही। हितेश जी से शायद मुलाकात हुई थी ना जब मैं आया था। हितेश जी आपसे हाँ हुई थी जी मुलाकात? सर, हुई थी, मैं था प्रेजेंट। हाँ वही मेरे को वही। अब वो 1-2 बार और मिलोगे तो फिर बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। शांतनु जी आप इंट्रोड्यूस करिए। जय जिनेन्द्र। मैं शांतनु जैन, मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर सर्विस का बिजनेस है, और मैं उदासर राजस्थान से हूँ। थैंक यू शांतनु जी। डॉक्टर मेहता जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर महेंद्र मेहता, ENT सर्जन हूँ। दाहोद में मेरा नर्सिंग होम है और एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ यहाँ पे जजेस मेडिकल कॉलेज में। और नवीन जी, आप पंकज जी आपसे मुलाकात हुई थी वहाँ पे अभी अहमदाबाद में। आपने बोला था अहमदाबाद में मेघनगर में हमारी फैक्ट्री भी है, बात हुई थी हमारे आपके ब्रदर से साथ। हाँ बिल्कुल। आप जब भी याद है। मैं मेघनगर आऊंगा तो आपके यहाँ जरूर आऊंगा। जी बिल्कुल, लेकिन स्वागत है आप आपका। लोग हमारी हाँ आप लोग लेकिन 4 जने हैं वहां पे, और है क्या प्रोस्पेक्टिव कुछ और बढ़ सकते हैं क्या मेंबर्स? हाँ अभी हाँ है ESN पाइपलाइन में है। अभी एक और हमारे परिवार में एक और डॉक्टर बन के है, वो भी इज अबाउट टू जॉइन। और अभी काफी 1-2 जो वो इंजीनियर भी है उनको भी हम लोग परस्यू करते हैं कि आप भी ज्वाइन करें। तो एक स्मॉल मतलब एक ग्रुप हो जाएगा, 6-7 लोग तो हो ही जाएंगे मुझे लगता है मुझे। जी करिए, थोड़ा एफर्ट करिए, वहीं पे एक यूनिट बना देते हैं। एक यूनिट, ठीक बात है, यूनिट बना देते हैं। हमें तो थोड़ा सा आप ये करिए। वडोदरा के अंडर में रहने दीजिए, वडोदरा के अंडर में रहने दीजिए। अच्छा है। जी चलिए, लेकिन आप एक्सप्लोर तो करिए डॉक्टर साहब, अगर आसपास में कोई अगर और प्रोफेशनल्स हो तो एक यूनिट बनाया जा सकता है अपने में। ये जो झाबुआ और इस बेल्ट को मिला के अगर कुछ होता हो तो देखिए ना, झाबुआ दाहोद और ये वाले में। हाँ झाबुआ में हम ट्राई कर सकते हैं। अब पंकज जी गादी वगैरह है, उनसे बात करके मैं वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे उनसे बात करके ट्राई। और ये वो पेटलावद है, ये एरिया पूरा यहाँ पे एकदम अपना गढ़ है सब तेरह पंथों का। पेटलावद है, झाबुआ, कल्याणपुरा है, ये सब एरिया में जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वी कैन ट्राई डेफिनेटली।
तो हाँ तो कुछ अच्छा आइडिया ये हाँ तो कुछ किया जाए और पारिक जी तो हमारे स्पेशलिस्ट हैं ब्रांच बनाने के लिए, वैसे भी तो जी उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट कर बिल्कुल देंगे उनकी हम उनको जी उनकी गाइडेंस में ही करेंगे जी बिल्कुल हाँ जी उनको रिक्वेस्ट कर देंगे कि भाई वो वहाँ चले। चलिए बिल्कुल एक बार पधारे आप सब पधारे यहाँ पे स्वागत है आपके लिए Dr. जय जिनेंद्र Puja Chajed, please introduce yourself. माइक आपका ऑन कर दीजिए पूजा। पूजा आपका माइक ऑन करिए। Jai Jinendra to all. Myself, Dr. Pooja Chhajer. I am homeopathic consultant. At present, I am working as a assistant professor at Parul University. And native place is Sadarsha, Rajasthan. Thank you. Dr. Santosh Mehta. Dr. Santosh Mehta ji, please introduce yourself. Yes, yes. Jai Jinendra to everyone. Myself, Dr. Santosh Mehta. I am wife of Dr. Mahendra Mehta. I am an ophthalmologist and I am working here at Drashti Netralaya. That is a PG institute. I have done my Indore NJ Medical College and I am residing at Dahod at present. Thank you. Thank you, Dr. Santosh ji. Gaurav ji Loda, kindly introduce yourself. Gaurav ji Loda is our membership convener. Hello, Jai Jinendra, all of you. Myself, Gaurav Loda, and I am a chartered accountant and company secretary and associate with ONGC Petro Editions Limited. And my native place is Jaipur, Rajasthan. Thank you. सिद्धि जी आप इंट्रोड्यूस करिए। सिद्धि आर यू ऑनलाइन? ठीक है, दिनेश जी वैद, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिनेश जी। सौरभ जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं आर्किटेक्ट सौरभ कोठारी। आई अपोलोजाइज, मेरा एक्चुअली फ्रंट कैमरा इज नॉट वर्किंग फॉर द डे एंड आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन आर्किटेक्ट who professionally deals with landscape architecture and interior designing. I had an opportunity to meet a lot of people at Global Connect 2023, which I'm really glad that I attended. So yes, thank you. Dinesh ji, if you are online, Siddhi ji, if you are online, kindly introduce yourself. एक कीर्ति दोषी जी भी हैं। कीर्ति जी, yeah, please introduce yourself. जय जिनेंद्र, मेरा नाम कीर्ति है और मैं फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइनर हूँ। मैं डेला बाय जीवन मिस्त्री के साथ काम कर रही हूँ अभी, और मैं थोड़े दिन बड़ौदा थी, पर अभी मेरा शिफ्ट बॉम्बे हो गया। और अभी भी मेरे बड़ौदा के अंदर मेरे प्रोजेक्ट्स चलते हैं इंटीरियर्स ऑफ फर्नीचर के, और मेरा नेटिव प्लेस इज दिल्ली एंड सुजानगढ़। Dinesh ji, please introduce yourself. Thank you, Kirti ji. Jai Jinendra, myself Dinesh Vaid. I'm chartered and cost accountant. I'm managing my own business here. क्या बिजनेस करते हैं दिनेश जी आप? मेरा वाल्व और ऑटोमेशन का बिजनेस है। अच्छा, शांतनु जी का नहीं हुआ ना? शांतनु जी का हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, सिद्धि खाली मेरे ख्याल से बाकी है। चलिए तो हम पहले नवीन जी को सुन लें, और या मतलब पहले नवीन जी को सुन लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चंस है या कुछ थॉट प्रोसेस है, किसी के कुछ आइडियाज है, किसी को कुछ पूछना है। पहले नवीन जी को सुन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं सर। अच्छा, पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए, तारिक जी कोई क्वेश्चन, अजय जी कुछ क्वेश्चंस, किसी के भी, कोई भी, जितने भी अपने प्रोफेशनल्स हैं। क्या बात है? हेलो, यहाँ सब आप क्वेश्चन हम लोग अटेंड मिशन कर 1313 के हेलो हाँ बोलिए। हेलो। मैं हाँ डॉक्टर मिशन 1313 के बारे में आप थोड़ा
डिटेल्स प्लीज बताएंगे क्या? व्हाट इज ठीक इट? है। एंड जी ठीक है, नवीन जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आपने क्वेश्चन किया है अभी की मिशन 1313। अच्छा, ये महाप्रज्ञ शिक्षा सहयोग योजना तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम पिछले 7 वर्षों से चला रही है। 4000 से अधिक बच्चों को करीब 6 करोड़ से अधिक की राशि हम लोग दे चुके हैं। इसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, वो आपके ग्रुप में शेयर भी कर दिए होंगे शायद, अगर नहीं किया तो भी हम आपको दे देंगे। आप अजय जी डाल देंगे ग्रुप में कि किन एलिजिबल क्राइटेरिया के तहत हम उस बच्चों को सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा पूरे ग्रुप मेंबर से, स्कीम जो है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। जो भी आपके बड़ौदा के आसपास के एरिया में तेरापंथी बच्चे ऐसे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्लास 1 to प्रोफेशनल कोर्स, आप उन सबको उसे अप्लाई कर रही है। उनको हम कोई जो राशि है वो देने की कोशिश करेंगे। उसका जो अमाउंट है वो भी फिक्स्ड है, 21,000, 31,000, 41,000। तो उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हम उसको पेमेंट कर सकेंगे। तो आप सभी अपने अपने एरिया में देखें कौन से बच्चे जरूरतमंद है, आप उसको अप्लाई कर रही है। अब जब इतने सालों से ये स्कीम चल रही थी तो हर बार क्या होता था कि हालांकि स्कीम बहुत अच्छी है, समाज के लिए बहुत उपयोगी है, जिसके पास भी डोनेशन के लिए गए कभी कोई मना नहीं किया। हम लास्ट ईयर दिल्ली गए थे, पंकज जी, हम दिल्ली गए, हमने एक जने के पास में प्रोजेक्ट रखा कि कैसे इस काम को करेंगे, तो उन्होंने बोला सब हमारी तरफ से ले लो। कोई 51 लाख दे रहा था, कोई 1 करोड़ भी दे रहा है, और आज भी दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी की सोच थी, हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी की सोच थी कि आप क्यों न इस बार समाज को जोड़ा जाए। जैसे अभी डॉक्टर संतोष मैम ने पूछा कि ये क्या है, तो जब आप दानदाता बन जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस स्कीम को अपना लिया है और आप किसी न किसी को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए छोटे छोटे अमाउंट से कैसे हम समाज को जोड़ सके, इस शिक्षा सहयोग योजना से हमने ये प्लान बनाया और 1313 का एक मिशन बनाया कि 1313 दानदाता लाएंगे 13 से 13 बच्चों के लिए। एक दानदाता जो होगा वो एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 21,000 रुपए राशि देने की कोशिश करेगा। तो कुल मिला के एक छोटे छोटे व्रत से हम कैसे इस काम को आगे बढ़ाएं और 1313 परिवारों तक हम पहुंच बना सके। समाज के बीच में गए तो काफी आसान लगा कि क्यों नहीं एक सामान्य परिवार, मतलब जो बहुत बड़े डोनेशन कभी नहीं देता, कभी किसी ने 51,000 नहीं दिया, 1 लाख नहीं दिया, 5 लाख समाज में नहीं दिया होगा, लेकिन 21,000 देते हुए इतनी खुशी हो रही है उसको कि उसको लगता है कि मैंने एक समाज के एक बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा दिया है, समाज के एक बच्चे को मैंने गोद लिया है। तो इस भावना के साथ हमने ये मिशन 1313 शुरू किया है और परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद से आपको बताते हुए खुशी है कि आज केवल 3 दिन में 300 नाम तक पहुंच गए हैं, जिसमें ऐसे एग्जाम्पल पूरे इंडिया से आए हैं कि अगर मैं अभी शेयर करूं तो शायद मीटिंग क्लोज हो जाए, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं रहेगा। कि कोई वीडियो लेडी आके हमको बोलती है कि हमको 21,000 देने हैं, एक नॉर्मल शॉपकीपर बोलता है कि मुझे भी एक बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना है। तो ये जो स्कीम की भावना जो थी वो भावना के साथ जुड़ गई तेरापंथ समाज के साथ, ये हमारे लिए उपलब्धि है और हर एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी इस स्कीम से जुड़ना चाह रहा है। तो मिशन 1313 इस प्रकार से ये मिशन है और आप सब भी सहयोगी बनेंगे, यही हमारी शुभकामना है। सर, ये आपने इसकी डिटेल दी, अच्छा था। कुछ लोग इसके बारे में पूछते भी हैं कि भाई 1313 में आप कैसे डिफाइन करते हो कि इस बच्चे को 21,000 से 1 साल की पढ़ाई हो जाएगी, प्लस आप कैटेगराइज किस तरह से करते हो कि कौन सा बच्चा को आप ये मानोगे कि भाई इसको वाकई में जरूरत है? गुड क्वेश्चन हितेश जी। अपना क्या है, पूरा ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है। अभी आप क्या पोस्ट पे है क्या, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर में से? नहीं, मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअल में एक एडमिन पैनल है पूरा। जब आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अप्लाई होने के बाद में एडमिन के पास वो एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन आने के बाद में हम उसको मोटा मोटी चेक करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए उसने डाले या नहीं डाले। अगर नहीं डाले हैं तो उसको होल्ड पे डालता है एडमिन, और अगर डाल दिए हैं तो हम उसको संबंधित ब्रांच को भेज देंगे। मान लीजिए बड़ौदा और उसके आसपास की जो भी एप्लीकेशन होगी, हम बड़ौदा के अध्यक्ष को ट्रांसफर कर देंगे। उसमें क्लिक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। बड़ौदा के प्रेसिडेंट के पास उसका एडमिन पैनल एक्सेस होगा अपने वेबसाइट का। वो जैसे ही वेबसाइट पे जाएगा, उसको लॉगिन करेगा और उसे एप्लीकेशन देख लेगा कि मेरे बड़ौदा की कौन कौन सी एप्लीकेशन मुझे अलॉट हुई है जो मुझे वेरीफाई करनी है। अब इनको वेरीफाई क्या क्या करना है, वेरीफाई इनको मोटा मोटी 3 चीज करनी है। सबसे पहला तो करना है तेरापंथी है या नहीं। सेकंड, इनको करना है कि वो जरूरतमंद है या नहीं।
जरूरतमंद में 2-3 चीजें हैं। इसका एक हमने एक चेकलिस्ट बना रखी है कि मान लीजिए अजय जी सुराना बड़ौदा में रहते हैं और 100 फैमिली है वहां पे और 100 को लगभग को ये जानते हैं, तो अपन को ITR की भी जरूरत नहीं है, अपन को कोई इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। अगर अजय जी खुद प्रेसिडेंट या सभा अध्यक्ष से बात करके डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये जरूरतमंद है और वास्तव में इसको देना चाहिए, तो वो दे सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि इस परिवार को हम नहीं जानते, इसका इनकम हमको चेक करना है, तो ये ITR भी मांग सकते हैं, उसका इनकम सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। ब्रांच हैज पावर टू टेक द एनी डॉक्यूमेंट, उसके वेरिफिकेशन के लिए वो जो भी चाहे वो ले सकती है। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, और ये जैसे ये अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, मान लीजिए वो तेरापंथी नहीं है, मान लीजिए उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, जो हमने बना रखी है मेट्रो में अपने 2.5 लाख और बाकी मेट्रो में 4 लाख और नॉन मेट्रो में 2.5 लाख, ऐसा एक क्राइटेरिया बना रखा है। तो उसमें जैसे ही नहीं होगा वो रिजेक्ट कर सकते हैं, और अप्रूव करेंगे तो वापस एडमिन के पास आएगी, एडमिन उसको वापस चेक करेगा, फीस रिसिप्ट देखने के अनुसार कितने फीस उसको देनी है। अगर मान लीजिए उसकी फीस 10,000 है तो उसको 10,000 ही मिलेगा, मान लीजिए उसकी फीस 40,000 है तो उसको 21,000 हाईएस्ट अमाउंट मिलेगा। तो फिर वो ट्रेजरी के पास जाएगी और ट्रेजरी उसमें जो शो हो रही होगी उस हमको पेमेंट कर देगा। ये अपना पूरा प्रोसेस है। You are giving it per year? Sorry? You are giving it per year, 21,000 per year, or how you Yes, are giving yes, it? yes, every year. Per year. Okay, okay, Yes, yes. okay, okay, okay. सर फर्स्ट थिंग उनको तेरापंथी होना जरूरी है। एक और बात है, Yes. हाँ, तेरापंथी होना जरूरी है, और दूसरी उसको चीज, हर साल apply- अगर उनको सब ये स्कीम में अप्लाई करना है तो उनको ऑनलाइन पोर्टल से ही जाना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट को भेज दिया, जोन प्रेसिडेंट को भेज दिया, नेशनल प्रेसिडेंट को भेज दिया, ईमेल कर दिया, वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसको किसी के पास नहीं जाना है, किसी का चेक नहीं लगवाना है, उसको सिंपल अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। उसको हर साल फॉर्म भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन किसी की भी हर साल चेंज हो सकती है। मान लीजिए आज जरूरतमंद है, अगले साल वो समाज से नहीं लेना चाहे तो हमको कैसे मालूम चलेगा? तो हर साल उसको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ऑप्शन आएगा कि उसने लास्ट ईयर लिया या नहीं लिया, वो उसमें ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास वो ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। सर वन लास्ट थिंग कि अपने उनको 21,000, आपने इनिशियली बोला था 21,000, 31,000, 41,000, 3-4 स्कीम है, 3 स्कीम है शायद। क्लास 1 to 12 21,000, ग्रेजुएशन कोर्स 31,000 and post graduation is 41,000 is the highest amount for the scheme. Okay, thank you. Excuse me, you are taking donation from Terapanthis only or other Jains also? देखिए ऐसा है, डोनेशन ऐसी चीज है जैसे आज CSR ले रहे हैं अपन लोग। आपके यहाँ से कोई भी कंपनी ONGC में आप हैं, आप अभी लार्सन में थे शायद, कोई बोले थे, तो कोई भी कंपनी हमको CSR देती है किसी फंड के लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई नॉन जैन भी हमको पैसा देता है तो उसका हमको दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन ये है कि डोनेशन मान के, डोनेशन समझ के ही डोनेशन दे। अगर वो कोई एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हमारे समाज के बच्चों को ये पढ़ा देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हमको तेरापन समाज के लिए ही पैसा देना है। हाँ, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर वो डोनेशन में जैसे होता है ना रक्तदान महादान, रक्तदान देने वाला ये नहीं कहता है कि मुझे रक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस। अगर ऐसा मान के वो हमको देता है तो ऑल आर वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नवीन जी, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, कल यहाँ पे वर्षी तबके तपस्वियों का एक बहुमान का कार्यक्रम था। वहाँ पे मैंने ये कार्यक्रम का जस्ट इंट्रोडक्शन किया 1 मिनट के लिए, और 2 डोनर्स मेरे पास नाम लिखा दिए ऑलरेडी। तो बड़ौदा से 2 डोनर तो हमारे पास ऑलरेडी नाम रजिस्टर हो चुके हैं। और बाद में क्या, कल कार्यक्रम काफी लेट चला, दिन भर काम में थे, अभी और दिन है हमारे पास। हम लोग खूब प्रचार करके इसमें पूर्ण सहयोग बड़ौदा की तरफ से आपको मिलेगा। अजय जी, अपना उद्देश्य यही था, समाज के बीच में जब हम स्कीम ले जाएंगे वो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि 2 आवे या 200 आवे, बट जब वो स्कीम को समझेंगे ना, आप पर्सनली अगर 5 जनों को भी बताएंगे। आज मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है एक्चुअल में, मेरे यहाँ डेली एक न एक जना अभी डेली आ रहा है, क्योंकि मैंने जब सभा भवन में ये लॉन्च की थी तो उस समय समझ नहीं पाया या क्या हुआ नहीं है, तो वो डेली एक न एक जना आके पूछता है कि आप उस दिन किसके बारे में क्या बता रहे थे, और जितने आए सब अभी देखे गए। तो कुल मिला के ये प्रोसेस ऐसा बना है कि एक बच्चे को गोद लेने की हमारी एक परंपरा बने, हम हर साल एक बच्चे को पढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था बने, तो बड़े लोगों के पास भी जाना नहीं पड़ेगा और हम सबका सहयोग से कोई समाज में अच्छा काम हो पाएगा। अजय जी, आपको हर एक फैमिली को TPF को शोकेस करिए
फोन पे करिए, मिल के करिए, जैसे भी करना हो वैसे करिए। और डेफिनेटली कम से कम मतलब मेरा ये सोचना है कि टीपीएफ कम से कम शोकेस होगा। कोई परिवार इस बार डोनेशन नहीं देगा तो अगली बार देगा और अगली बार जरूर। देगा। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता लगना चाहिए कि टीपीएफ क्या कर रहा है पूरे देश में। और कोई क्वेश्चन है किसी भी और दूसरी स्कीम या प्रोजेक्ट टीपीएफ क्या कर रहा है या क्या करना चाहिए, कोई अच्छा सुझाव है तो वो भी आमंत्रित है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पंकज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस मीटिंग के लिए। थैंक यू नवीन जी और सभी मेंबर्स, बड़ौदा ब्रांच के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस मीटिंग से जुड़े। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं फिर। Thank you so much. Thank you, Om Aram. Om Aram.